Hello, friend. This is Nishchay Tripathi. I'm an advocate practicing High Court Allahabad. Actually, I want to share this thing in this video that there are many persons who call me, or maybe they get my numbers on the online because of this YouTube channel, or the otherwise there are different means when they call me. They call me and just say these all the things that they have just given some amount of money to their friends or maybe their relatives. And the question is that here, the person who has given the money, actually that person is not ready to just deposit that money, and that money is really in the question or in the van, and it is the actually the problem of here of the litigation. The person who just think that this kind of cases can easily handled by the court, yes, it can be if you have just all that kind of evidences in your laptop or maybe in the mobile or the chat, or maybe if this is the written document, so there is not any kind of problem, or it is if the bank transaction, so there is also not any problem. But the problem is that when you just borrow your money to another person on believing him this person is good and he can just refund you that money after a particular time of period, but he is not giving you that money. In that situation, what you do? So there is the problem. मैं हाउएवर आई वांट टू से दैट, मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि प्लीज़ आप हिंदी में वीडियो बनाइए, हमें समझ में नहीं आता है या हमें समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैं ठीक है, मैं ये बात कहता हूँ आपसे कि आप जब कोई अमाउंट या मनी किसी भी ऐसे इंसान को देते हैं जिस पे आप भरोसा करते हैं, और उसके लिए फिर जब आप वो पैसा उसे देते हैं और आपने कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं रखा है, जैसे आपने किसी बैंक के थ्रू नहीं दिया, आपने किसी चेक के थ्रू नहीं दिया, या कोई ट्रांजैक्शन का प्रूफ नहीं है आपके पास, तो आप क्या करेंगे? ऐसे सिचुएशन में जब आपको प्रॉब्लम होती है और आप उससे पैसे मांगते हो और वो आपको पैसे वापस नहीं करता है, फिर आप क्या करते हो? उसी के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि जब भी आपको इस तरह की कोई दिक्कत हो, आप जितना जल्दी हो सके उस इंसान से पैसे मांगिए। आप कहिए ठीक है, अगर उसने 1 महीने का वक्त दिया, 1 महीना, 2 महीना तो 2 महीना, 3 महीने 3 महीना, बट कोशिश करिए कि जल्दी जल्दी से वो अमाउंट आप वापस लें। अमाउंट अगर बिना बात के आप दे रहे हैं किसी को भी और आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ विश्वास के आधार पर दे रहे हैं, तो कभी भी ज़्यादा अमाउंट ना दें। अमाउंट कम होना चाहिए, इतना कम होना चाहिए जिससे कि आपको अगर वो पैसा चला भी जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपके पास उस तरह के अमाउंट है, आप किसी ज़्यादा विश्वास करके किसी को लाखों रुपए दे देते हैं और उसका कोई प्रूफ नहीं है आपके पास, तो ये आपके लिए दिक्कत हो सकता है। So as per the advocate, what I want to say that there is actually relief on the ground of the law, and only if that you file these all the cases or the money whatever you have given to that person, that point of time started from the just deposit that money in another person's accounts if it is possible. So account is itself is evidence. But yeah, if you just give that money by hand or in hand, so in that situation your complaint should be just filed within the 3 years of that earlier point of times when you just give that money of that person. So there is the Limitation Act for the Indian law, that is called the Indian Evidence Act, and there is actually the limitation is rise here. The question of limitation is rise here. That is the 1963 Limitation Act 1963, which just governs these all the kind of cases and things, that this period is not crossed. This period should not be crossed at least for 3 years. If it is beyond 3 years, the court of law is not going to entertain your case. आप कोशिश करिए कि जब भी आप उस इंसान को पैसा देते हैं, तो अगर आपके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, तो भी आप जितना जल्दी हो सके एक कंप्लेन दाखिल करिए ऐसी किसी भी चीज़ के लिए कि वो आपको पैसे वापस करे, या आप किसी भी पुलिस में इन्फॉर्म कर सकते हैं इस बारे में। आप ऐसा नहीं कि आप इसके लिए FIR करें, और इस तरह की चीज़ों में FIR अगर अमाउंट्स काफ़ी कम है तो पुलिस जल्दी करती भी नहीं। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप इस तरह की कोशिश करते हैं, आप किसी भी तरह की लीगल एक्शन ले सकते हैं, आप उसे लीगल नोटिस भेज सकते हैं, आप किसी एडवोकेट्स के थ्रू जाके ये काम कर सकते हैं। तो आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन ये सभी कुछ करना चाहिए विद इन 3 years ऑफ दैट टाइम। देने के पैसे देने के 3 साल के अंदर ही आपको ये सवाल करना चाहिए, क्योंकि कोर्ट आपसे कहेगी कि आपका जो राइट है वो अनलिमिटेड नहीं है, वो हमेशा के लिए नहीं है, और आप जो भी इस राइट को अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको
विद इन 3 ईयर्स आपको वो करना होगा। तो इसके बाद भी कुछ लोग 3 साल के बाद जाके फाइल करते हैं और सोचते हैं कि ऐसा पॉसिबल होगा। ऐसा नहीं हो पाता, ये बहुत ही मुश्किल है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेस पे कुछ चीज़ें हो सकता है कि सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में कोर्ट एंटरटेन नहीं करती है। तो इसलिए प्लीज़ ऐसा करिए कि ये 3 साल से ज़्यादा ना हो। इस तरह के केसेस मेरे पास आते रहते हैं, लोग मुझे कॉल करते हैं और मैंने सोचा कि मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए, तो मैंने आप लोग के लिए बनाया है। चलिए ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।